Good evening, everybody. All right. So, bache, today we'll be picking up one more question paper. All right. Okay. So, Anisha is saying 40. All right. Okay. Congratulations, Anisha. Okay. All right. So, bache, we'll be discussing another question paper. Pre-term revision exam का ये paper है. All right. Okay. Question number 1. This is the activity बच्चे which is given in your NCERT book. Question number 1 की अगर आप activity देखेंगे तो ये NCERT की book में दी हुई है. Calcium oxide is quicklime mixed with water. Okay, so it is CaO plus water. It will give me calcium hydroxide plus heat. So what you have to do is ये तो हमारी equation है. What you have to do is you have to pick up the incorrect statements. So it is an endothermic reaction, but this statement is wrong. Slaked lime is produced. This is correct. Quicklime is produced, but quicklime is reactant. So quicklime is used up, not produced. All right. It is an exothermic reaction. True. Exothermic है, combination है. तो बचे 1 and 3 statement गलत है. So we will pick option C. Option C. Okay. Question number 2. What happens when a solution of an acid, it is mixed with solution of a base in a test tube? But whenever you mix acid with a base, what will you observe? First of all is you will get neutralization reaction. Neutralization hoga. Second, salt will be formed. एक salt बनेगा. Third, it is exothermic reaction. पहली चीज क्या है? Acid plus base, it will be neutralization reaction. A salt will be formed. Heat is also released. Exothermic. अब अच्छा, you can pick the options. Temperature of solution decreases. Wrong. Temperature of solution increase. Yes. Temperature of solution remains the same. गलत. Salt formation takes place. Correct. तो बच्चे 2 and 4 are correct. तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? D ऑप्शन. All right. Whenever you mix acid plus base, it will give me salt plus water. Neutralization will occur. A salt is formed and it is exothermic. All right. Chalo bache. Question number 3. In general, number of electrons in the outermost shell of an atom कितने होते हैं? Metal atom 1 to 3. 1 to 3. All right. Correct. Very easy question. Metals में generally बचे valence shell electron में 1 to 3 electrons होते हैं. Okay. So more than 3, it will then move on to non-metallic properties. तो इसका सही option है B option. All right. Question number 4. Which of the following represents a correctly balanced chemical equation? बच्चे अनेशा ऐसे तो पूछेंगे नहीं ना कि एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं. ओके. मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम इफ इट इज हीलियम तो 2. उसके बाद बचे ऑक्टेट होता है 8. अगर सिर्फ ये बोला था कि आउटरमोस्ट शेल में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं तो 2 या 8. 2 इज इन केस ऑफ हीलियम. उसके बाद तो सारे ऑक्टेट में आ जाएंगे. तो ऑक्टेट चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए. 2 और 8. तो जनरली 8. इज इट क्लियर अनीशा? ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 4. बचे आयरन प्लस टीन का रिएक्शन है. Iron plus tin. It will give you magnetic oxide plus hydrogen.
अब आपको स्टेट सिंबल भी देखने हैं और बैलेंसिंग भी देखनी है। तो बच्चे इसमें जो करेक्ट है बी ऑप्शन, iron in solid form, water in the form of gas, that is steam, you will get Fe3O4 plus 4H2, solid gas solid gas, this is the correct state. तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया बच्चे, बी ऑप्शन। ऑलराइट, करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3.10H2O, बच्चे इसको क्या बोलेंगे, it will be called washing soda. What it will be called, it would be called washing soda, Na2CO3 10H2O, washing soda। इसका केमिकल नेम क्या होगा बच्चे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, anaerobic respiration plants। Okay, Devadatta, I got your question. Anaerobic respiration in plants, बच्चे प्लांट्स के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, they will use up oxygen, not sure about anaerobic respiration in plants। फंजाई को आप प्लांट्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, ईस्ट को प्लांट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, पायरुवेट। बच्चे देखो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट फेज, ओके, ग्लाइकोलिसिस तो फर्स्ट फेज है। सो नॉट श्योर अबाउट व्हाट टू से, सेइंग दैट कि पायरुवेट बनेगा, ठीक है, नॉट श्योर अबाउट एनाएरोबिक क्वेश्चन आल्सो। ओके बच्चे, आई विल जस्ट चेक इट थ्रू, एक बार चेक कर लेंगे। ओके, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, अगर एनिमल्स होता तो फिर तो इजीली आंसर हो जाता, ठीक है ना, एनिमल्स होता तो फिर तो इजीली आंसर हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ओके, सो बच्चे दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज NaHCO3, NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है तो ये आप छोड़ सकते हो। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑल द अबव, वेरी गुड। इसका आंसर क्या है, ऑल द अबव। Grapes get fermented, chemical change, breakdown of food, I am thinking of it as digestion, formation of curd, it is also chemical reaction, so correct option would be D, all of the above, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, in the decomposition of lead nitrate to give lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas, the coefficient of nitrogen dioxide, बच्चे आपको बैलेंस करना है। So lead nitrate, it will give me PbO plus NO2 plus O2। तो बच्चे आई थिंक यहाँ 4 होता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ तो 1 ही रहेगा, एंड 2, यही बैलेंस इक्वेशन होगी, चेक करिए। 2PbNO3 ट्वाइस, 2PbO, 4NO2 O2, तो ये आंसर आएगा 4। चेक करिए एक बार, 4n 2 3 2 6 12 2 8 10 2 12, ओके 4NO2। ऑल राइट, तो बच्चे डी ऑप्शन आएगा, राइट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है बच्चे वंस यू बैलेंस, उसके बाद क्या नंबर आएगा, ओके। सो बच्चे लेट से आपके पास ये क्वेश्चन होता, XPbNO3 twice gives YPbO plus ZNO2
छोटा लिख लेते हैं, ZNO2 प्लस AO2। तो बचे व्हाट इज सम ऑफ x प्लस वाई प्लस z प्लस a। तो आपका आंसर क्या होता है? व्हाट वुड बी योर आंसर? 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो करेक्ट आंसर वुड बी 9। इज इट क्लियर? क्योंकि बच्चे हम बैलेंसिंग के टाइम 1 लिखते तो नहीं है, पर यहाँ 1 मानना है। 1 लिखते नहीं है पर कोएफिशिएंट तो 1 ही है ना, तो आप सारे कोएफिशिएंट्स का टोटल करोगे। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9। क्लियर? सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? इज इट क्लियर एवरीबडी? ऑल राइट, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statements is correct about an aqueous solution of acid and a base? बच्चे acid and a base, acid will have low pH, base will have higher pH। अब उस हिसाब से सोचना है। Higher the pH, stronger the acid, wrong. Higher the pH, weaker the acid, true. Lower the pH, stronger the base, गलत. Lower the pH, weaker the base, true. तो बच्चे इसमें सही स्टेटमेंट क्या है? 2 and 4। Higher the pH, weaker the acid, lower the pH, weaker the base। ओके, तो बच्चे इसका डी ऑप्शन बनेगा 2 and 4। क्लियर एवरीबडी? अगर पीएच बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर कम होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। अगर पीएच कम होगा तो बेसिक नेचर कम होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एंड 7 पे क्या होगा एग्जैक्टली? पीएच 7 न्यूट्रल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following pairs will give displacement reactions? बच्चे इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? यू हैव टू जस्ट लुक एट द मोर रिएक्टिव मेटल। ओके, वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर दिया आपने। कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट। बच्चे कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, इट विल गिव यू कॉपर नाइट्रेट। जस्ट मोमेंट, गलत लिख दिया मैंने। कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन होगा। और बच्चे इसका कलर होता है ग्रीनिश ब्लू। ठीक है ना, ये याद रखना। ऑल राइट, ऑल राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम? बच्चे दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को प्रिवेंट करना है। ऑलराइट, तो बच्चे हमें कोई इनर्ट गैस लेनी पड़ेगी। तो इनर्ट गैस तो बच्चे यहां यही दिख रही है, हीलियम एंड नाइट्रोजन। हीलियम एंड नाइट्रोजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। बच्चे जो ग्लाइकोलिसिस होता है, द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप इन रेस्पिरेशन, वेयर डज इट टेक प्लेस? इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये सेल के किस पोर्शन में होता है? साइटोप्लाज्म। ये याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ऑल राइट, नेक्स्ट, identify the option that indicates the correct enzyme that is secreted in location A, B, C। बच्चे यहां सलाइवरी अमाइलेज होता है माउथ में, और टाइलिन स्टमक, दिस इज स्टमक। स्टमक के अंदर होता है बच्चे पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाया हुआ है। तो बच्चे यहाँ 3 एंजाइम आते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। अब बताइए कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे आप? ओके, तो यहां जो बच्चे सही ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है बी,
यहाँ इन्होंने अमाइलेज लिखा हुआ है, पर बच्चे इसको स्पेसिफिकली सलाइवरी अमाइलेज लिखना चाहिए पूरा। ये आई थिंक हमने पहले भी एक सैंपल पेपर किया था या क्वेश्चन किया था, वहां भी ये गलती थी। ठीक है ना? इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? ओके, ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The correct path of urine in human excretory system. Again a very easy question. Okay, आपको सही पाथवे बताना है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, करेक्ट ऑप्शन। अगर बच्चे आपसे ये पूछा जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो किडनीज और उसके साथ एसोसिएटेड पार्ट्स हैं, सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ होता है? सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ होगा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में? इट विल बी इन यूरेटर्स। यूरेटर हैज मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया, क्योंकि बच्चे यहां यूरिन निकलता है जस्ट किडनी से। और सबसे कम किधर होगा? सबसे कम किधर होगा? लीस्ट, इट विल बी इन रेनल वेन। रेनल वेन में मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया, क्योंकि यहां से बच्चे ब्लड फिल्टर होके बाहर जाता है किडनी से। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? क्लियर एवरीबडी? यूरिन जब बन के निकलेगा किडनी से तो यूरेटर में जाता है, तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कहां होगी? इट विल बी इन यूरेटर्स। और मिनिमम कंसेंट्रेशन यूरिया की कहां होगी? जब आपका ब्लड फिल्टर होकर किडनी से बाहर आता है डायरेक्टली इनटू रेनल वेन। चलो क्वेश्चन नंबर 14। द कप लाइक हॉलो प्रॉक्सिमल पार्ट। बच्चे जो ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? और ऐसे ट्यूब निकलती है नीचे से, दिस इज नोन एज बोमन्स कैप्सूल। और इसके अंदर कैपिलरीज का बंच होता है जो बच्चे, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। दिस इज बोमन्स कैप्सूल, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15। द फंक्शन ऑफ बाइल इज टू। ये तो क्लास 7th का 6th का क्वेश्चन आ गया। इट हेल्प्स टू इमल्सिफाई फैट्स, emulsification of fats so that they can be digested by lipase, secreted by pancreas. Question number 16. If stomata is blocked, अगर बच्चे स्टोमेटा को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा? What do you think? All right. Transpiration, photosynthesis and respiration, they will not occur. बिल्कुल सही, करेक्ट। चलो आगे। ये तो मुझे आई थिंक समझाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब स्टोमेटा ब्लॉक हो गया तो बच्चे गैस एक्सचेंज नहीं होगा, वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर। बच्चे प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है? लेट्स से दिस इज आवर प्लेन मिरर, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, यहां से निकली लाइट रे, एक लाइट रे यहां गई, ओके, ये रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, यहां से लाइट रे इधर आएगी, ये इधर रिट्रेस करेंगे इसको, यहां इमेज बनेगी। गलत बन गई है मेरी, सेम डिस्टेंस पे बननी चाहिए, साइज भी सेम होगा, मेरा यहाँ डिफरेंस है बहुत ज्यादा। पर आपको याद ये रखना है कि एक वर्चुअल इमेज बनेगी, यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड नहीं होगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है वर्चुअल। लेटरली इन्वर्टेड, यस, लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट। Size of image is equal to that of the object. Fourth is also correct. So 1, 3 and 4. 1, 3 and 4 are correct. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 17B। चलो वेरी गुड। 18A।
बच्चे 18A में कौन सा लेंस यूज किया गया है? 18A में कौन सा लेंस यूज किया गया है? बताओ। कॉनकेव लेंस। ऑल राइट, 18A में कॉनकेव लेंस यूज हुआ है। इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। और ये इमेजेस कैसे फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। Image formed by a concave mirror is real, inverted, and of same size as that of the object. The position of the object should be. अच्छा, कॉन्केव मिरर में रियल इन्वर्टेड इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो उसी जगह पे इमेज बनती है। ऑलराइट, सेम साइज की भी। सो इट इज एट सी। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर at a distance of 3 meters. What is the distance between the boy and his image? बॉय और उसके इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? बताओ। 3 + 3 6. बॉय एंड हिज इमेज 3 + 3 6 मीटर। जितना वो मिरर के आगे होगा उतनी इमेज उसकी मिरर के पीछे दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 21। A convex lens produces a magnification of +5. Where should the object be placed? बच्चे देखो, मैग्निफिकेशन +5 यानी ये वर्चुअल इमेज है। दिस इज वर्चुअल इमेज। अब बच्चे जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट इमेज होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? एट लेस देन एफ। फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखना है आपको, ताकि ऑब्जेक्ट कहां आ जाए? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज। कॉन्केव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर बच्चे 22 का सी कैसे आया? मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू 1 कैसे हुआ? कॉन्केव लेंस में इमेज हमेशा छोटी बनती है। छोटी बनती है कि बड़ी बनती है? लेस देन 1। कॉन्केव लेंस में इमेज हमेशा कैसी बनती है? छोटी बनती है। तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू 1 कैसे आ सकता है? मैग्नीफाइंग पावर शुड बी लेस देन 1। लेस देन 1। ऑलराइट, 23. The optical phenomena twinkling of stars is due to atmospheric refraction. All right, atmospheric refraction. ये भी हमने करा था बच्चे। लाइट जो है बार बार अपना पाथ चेंज करेगी एटमॉस्फेयर में ड्यू टू वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस फिनोमेना लीड्स टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑल राइट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24. A white light falls on a glass prism. The least deviated color is. बच्चे, ग्लास प्रिज्म में सबसे कम डिविएट कौन सा कलर होता है? सबसे कम होता है रेड, सबसे ज्यादा होता है वायलेट। रेड इज फास्टेस्ट, वायलेट इज स्लोएस्ट। ठीक है ना? तो सबसे कम कौन सा डिविएट है? रेड कलर।
तो ये सीक्वेंस याद रखना है विबग्योर का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर सबसे नीचे होगा वायलेट, सबसे ऊपर होगा रेड, और ये सबसे कम डिविएट होता है, लीस्ट। मैक्सिमम कौन सा होता है? वायलेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वी आर मूव्ड ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन ए खत्म हो गया है। A student learns that some products are formed as a result of combining two compounds, while some compounds are formed as a result of dissociation of two. Okay, तो बच्चे अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो रिएक्शन है, two or more reactants combine to form a single product, this is combination. And zinc carbonate decomposing to form ZNO and CO2, बच्चे this is decomposition. ये रिएक्शन किसका है? डीकॉम्पोजिशन। ऑलराइट, अब पिक करिए रिएक्शन पी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, while reaction Q, it is example of a decomposition reaction. Clear everybody? बहुत easy है. First is combination, second is decomposition. So correct option is C. चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 26। बच्चा रिएक्शन बिटवीन कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड NaCl। पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, NaCl प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। बच्चे इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस HCl। HCl गैस बनेगी। ओके, अब बच्चे ये जो HCl गैस है ये ड्राई है, ड्राई HCl गैस। और बच्चे अगर आप इसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे, ब्लू लिटमस पे which is dry, blue litmus paper which is dry, there will be no color change. अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि HCl तो एसिडिक है, HCl तो एसिडिक है, तो इसकी जो गैस है उससे स्किन क्यों नहीं बर्न हुई या कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? वजह उसके पीछे क्या रीजन होता है? व्हेनेवर यू मिक्स एसिड इन वाटर, तभी वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा और उसका एसिडिक नेचर दिखता है। अगर आप ड्राई लोगे तो उससे उसका एसिडिक नेचर नहीं पता चलेगा। और बच्चे अगर लिटमस ने अपना कलर चेंज नहीं किया, दैट मींस गैस इज आल्सो ड्राई, लिटमस इज आल्सो ड्राई। ओके, तो बच्चे ब्लू लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज नहीं किया, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? The litmus paper used is dry. अगर आप moist यूज करते तो कलर चेंज हो जाता। सी ऑप्शन लिखा है बच्चे, ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर। तो बच्चे बी भी गलत है, सी भी गलत है। लिटमस पेपर इज केप्ट वेरी क्लोज, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 27। द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड स्टीम। मेटल और स्टीम के बीच में रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा बच्चे, जो मेटल प्लस स्टीम का रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम है इसके अंदर। तो बच्चे जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, मैग्नीशियम प्लस स्टीम, तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आप कभी भी बचे मेटल को, मैग्नीशियम है जैसे जिंक है, इनको आप स्टीम में रिएक्ट करोगे तो ऑक्साइड बनता है। अगर आप इनको हॉट वाटर या बॉइलिंग वाटर में डालोगे जैसे मैग्नीशियम को, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आप सही ऑप्शन पिक करिए। अब Mg reacts with steam to produce hydrogen gas. 2 is correct. Mg reacts with steam to produce MgOH twice. Fourth is Mg reacts with steam to produce MgO. तो बच्चे fourth statement is also right.
तो इसमें सही ऑप्शन हो गया 2 and 4। सही ऑप्शन है 2 and 4। ठीक है बच्चे, क्लियर एवरीबडी। आगे क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ओके, तो बच्चे यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, एलिमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 12 रिएक्ट्स विद एलिमेंट वाई। ठीक है, एलिमेंट वाई विच इज 17। तो बच्चे अगर आप x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो x इज इक्वल टू 282, y इज 287, तो बच्चे अगर मैं इस हिसाब से देखूं, ये x की जो वैलेंसी है x इज +2, y इज -1। ओके, तो आप इनकी वैलेंसी लिख के अगर क्रिस क्रॉस करोगे ओके, तो फॉर्मूला बनेगा XY2। तो बच्चे XY2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये करेक्ट है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था XY2। ओके, अब बच्चे ये एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, इट इज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज आयनिक कंपाउंड। विल इट बी सॉल्युबल इन वाटर? यस। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? रॉन्ग। It will conduct electricity in the molten state? True. So 1, 2 and 4 they are true. ठीक है, so correct option is 1, 2 and 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। A teacher gave 2 test tubes to students, one containing water and other containing sodium hydroxide. She then asked them to identify the test tube containing NaOH. Which one of the following tests can be used? तो बच्चे इसमें कोई इंडिकेटर को ध्यान रख के बताइए कौन सा यूज करना चाहिए, अगर उसको पता करना है कि कौन सा इसमें बेस है। ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, व्हाट शुड यू डू? रेड लिटमस पेपर। अच्छा, रेड लिटमस पेपर, इट विल चेंज कलर टू ब्लू ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद बेसिक सॉल्यूशन। ऑलराइट, फिर है क्वेश्चन नंबर 30। Vinay observed that stain of curry on a white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed, turns yellow again when shirt is washed with plenty of water. What might be its reason? अच्छा, पहली बात, सोप तो बेसिक है नेचर में, तभी कलर चेंज हुआ है टर्मरिक का। टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश चेंज इन बेसिस, दिस इज आल्सो ट्रू। बच्चे 2 and 3 करेक्ट। ऑलराइट, तो 30B। चलो अब बच्चे असर्शन रीजन क्वेश्चंस। क्वेश्चन 31, aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic nature. This is true, क्योंकि बच्चे they do not release H+ ions. इनमें H+ तो होता है, H+ आयन बहुत सारे हैं, पर ये रिलीज नहीं करते, डू नॉट रिलीज, इसलिए वो एसिडिक नेचर नहीं शो कर सकते। Assertion question 32, the balancing of chemical equation is based on law of conservation of mass. Total mass of reactants is equal to mass of products. Is it correct? Yes. तो इसका सॉरी, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, मैंने रीजन पढ़ना था, मैं नीचे चला गया। एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H+ आयंस, तो बच्चे दिस इज ट्रू। 31A assertion, balancing of chemical equations is based on law of conservation of mass. Total mass of reactants is equal to mass of product. बच्चे ये भी स्टेटमेंट सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो A। 33, raisins and gums are stored in old xylem tissue in plants. ये स्टेटमेंट सही है। They help to facilitate
transport of water molecules. Resins and gums help to transport water and xylem. बच्चे आई डोंट थिंक सो इसमें इसका कोई रोल होना चाहिए. ठीक है. Resins and gums, they are specific chemicals which plants do are not using. तो अपने बड़े ट्रंक्स के अंदर वो क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं. Okay. Reason is resins and gum facilitate transport of water molecules. But what do you think? Assertion is true, reason is false. So correct option is C. All right. Question 34. Sky appears blue in daytime. White light is 7. ये आई थिंक एक बार पहले भी हमारी ऐसे ही क्वेश्चन पे एक डिस्कशन हुई थी कि जो स्काई की रिफ्लेक्शन है वाटर में दिखती है, इसलिए आपको वाटर ब्लू दिखता है. व्हाट डू यू थिंक, इसका आंसर क्या होगा? बी. बोथ आर ट्रू बट दे आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच अदर. स्काई अपीयर्स ब्लू in the daytime. Reason, white light is composed of 7 colors. But reason is not correct explanation. All right. तो बच्चे इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा बी ऑप्शन. Both are true and reason is not correct explanation. उसके बाद है बच्चे baking powder is used in making cake instead of only baking soda. Reason, baking powder contains tartaric acid which reacts with sodium carbonate, removes bitter taste. बताइए बच्चे 35 का क्या आंसर होना चाहिए? ए. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन. उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 36. इन ह्यूमंस द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू दी. बच्चे लंग से ब्लड वापस किधर को घूम के आता है? इट कम्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स. लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. ओके. लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू आता है? इट कम्स थ्रू पल्मनरी वेन. यही एक ऐसी वेन है पूरी बॉडी में जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. Question number 37. The role of nasal cavity in human respiratory system: removal of germs and dust, filtration of inhaled air, moistening of inhaled air. बच्चे ये germs और dust को रिमूव करने में हेल्प करता है. ठीक है. moistening of inhaled air and filtration of inhaled air. तो ये तीनों ऑप्शन आएंगे 1, 2 and 3 तीनों. तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी. 1, 2 and 3. हाँ जी सिमरन. Sir, from the lungs, the oxygenated blood will come to the left atrium, right? Then it would go to the left ventricle. एक मिनट. In humans, the oxygen rich blood. बच्चे oxygen rich blood. Yes, sir. So first it will come from the left atrium to the left ventricle, and then it will go to the rest of the body parts via aorta. ओहो सॉरी. मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल टिक कर दिया, सॉरी. इसका सही आंसर है लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर पूरी बॉडी में जाएगा. करना मैंने एट्रियम ही था पर मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल कर दिया. ऑलराइट, चलो ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What is common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and in glomerulus of nephron? बच्चे ब्लड वेसल्स जो सराउंड करती हैं एल्वियोलाई और ग्लोमेरुलस, उनके बीच में आप क्या सिमिलैरिटी देख पाओगे?
there will be great network of capillaries and they will be thin walled, richly supplied. Thin walled capillaries richly supplied with blood, 38D. Absolutely right. Chalo aage. Question number 39. Ram placed a glass slab on a drawing sheet and marked its boundaries PQRS. Then he removed the glass slab and drew lines. तो बचे he observed that path. ये देखो ये एक path है जो light का. Where does the incident and emergent ray meet? बचे incident ray ये है, तो इन दोनों के बीच में बचे पैरेलल डिस्टेंस है. तो बचे पैरेलल लाइंस कहाँ मीट करती हैं बताइए. ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है जब रे डायग्राम्स बनाए थे. पैरेलल लाइंस दे विल मीट एट इंफिनिटी. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. Correct option is C. They'll meet at infinity. Correct option is C. Question 40. What is the refractive index of the medium of angle of incidence is equal to angle of refraction? बच्चे अगर angle of incidence angle of refraction से equal हो गया तो क्या होगा? The medium's refractive index will come out to be 1. दोनों की refractive index same आएगी. Artificial removal of nitrogenous waste from human body in event of kidney failure, it is done by hemodialysis or dialysis. ये किसके थ्रू होता है? ये होता है डायलिसिस के थ्रू. All right. Question number 42. In a person, the tubule part of nephron is not functioning at all. What will be its effect on urine formation? अच्छा, लूप ऑफ हेनली या ट्यूब्यूल पार्ट में क्या होता है? जो एक्सेस वाटर है, सॉल्ट्स वगैरह हैं, वो सब रीअब्सॉर्ब होते हैं. सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनइफेक्टेड. ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा. यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये भी गलत हो जाएगा. यूरिन इज मोर कंसंट्रेटेड, ये भी गलत हो जाएगा. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, मतलब उसमें पानी ज्यादा होगा यूरिन में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 43. Water in deep sea is bluish in color due to scattering of light or reflection of sky in water. What do you say? (43C). All right. Okay. चलो आगे. A concave lens has focal length 10 centimeter. अच्छा, concave lens है, focal length है 10 centimeter, तो -10. Object of height 2 millimeter, तो object height is 2 by 10 centimeter. मैंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 by 10 कर दिया. It is placed at a distance of 15 centimeter from the pole. All right. तो बचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -15 cm. फाइंड हाइट एंड नेचर ऑफ द इमेज. बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले v फाइंड करते हैं. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. You have to find v, तो v इधर ले उधर जाओ, तो 1/v is equal to 1/f plus 1/u. Put the values. f की वैल्यू है बच्चे 10. 1/10 प्लस माइनस माइनस, u की वैल्यू माइनस में है, तो बच्चे u की वैल्यू है -15. What would be its LCM? 10 3s are 13, 15 2s are 30. 2 minus 2. Okay, so v is equal to 30/0. 30/0 मैंने सही की है? क्या गड़बड़ कर दी मैंने?
F is -10, distance from pole, U is -15. 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. Find V, 1 by F plus 1 by U, minus डालो 1 by 10 minus 1 by 15. LCM is 10 3s are 30, 15 2s are 30. तो 10 3, okay, got it. पता लग गया. 3 minus 2. So V is equal to 30 centimeter. 30 centimeter. तो V आ गया. अब अच्छे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V by U is equal to HI by HO. V by U is equal to HI over HO. तो you have to find height of image. Height of image is equal to V की वैल्यू कितनी है 30, U की वैल्यू कितनी है -15 into what is height of object? Height of object is 2 millimeter. So बच्चे इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर 10 mm. तो आपके पास पे क्या है 2 mm. तो बच्चे 2 mm को cm में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आप 10 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. इसको सॉल्व करके देखिए. हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू V by U. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 by 10, 3, it would be 6 by 15. ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा. ऑलराइट, क्या आंसर आएगा बच्चे? क्या आंसर आएगा? हाँ जी आराम. Sir, focal length should be negative. So you have taken it positive. कॉनकेव लेंस है ना बेटा. अच्छा Yes. मैंने नेगेटिव में नहीं लिया. No, sir, you क्या take किया? it positive. मैंने पॉजिटिव में ले लिया. Yes, sir. ओके -10 चेक करते हैं. तो -10 हो गया, -5. ओके गॉट इट. तो ओके सही आ गया. तो -5 V इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर. V इज -6. तो -6 12 by 10. अच्छा अभी भी आंसर नहीं आ रहा. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा. 1.2 आ रहा है मेरा. आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगी. आई थिंक कोई वैल्यू मिसिंग हो गया. चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. इसमें लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है वैल्यू में. ओके तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 45. व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. अच्छा ग्लास प्रिज्म के अंदर क्या होता है? 1 refraction, 2 refractions, 3. It will have 2 refractions. 2 refraction होंगी. All right, 2 refractions. Question number 46. If a convex lens is used to focus sunlight on a paper, where the paper should be placed so that it catches fire? अच्छा you have to place it at its principal focus. आप उसे कहाँ प्लेस करेंगे? प्रिंसिपल फोकस पे. हाँ जी सिमरन. सर जो वो भी हम न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे सॉल्व करने की, सर उसमें कॉनकेव लेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉनकेव लेंस में तो जो इमेज फॉर्म होती है वो हर बार डिमिनिश्ड ही होती है. हाँ तो सर लेकिन यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट होगा मतलब हाँ डिमिनिश्ड होगा तो फिर उसकी हाइट भी तो छोटी होगी और इसमें सारी हाइट बड़ी दे रखी है. इसमें सारी हाइट्स बड़ी दे रखी है ना. यस तो सर. अगर हम इस ओके यस अगर सर हम इसको कॉनकेव कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स कर लें तो क्या होगा? या फिर सर कॉनकेव मिरर भी से भी ट्राई कर सकते हैं. कॉनकेव मिरर से करें आप बोल रहे हो? फिर सही आ सकता है.
तो मतलब ये दो सिचुएशंस ही होंगे जिसमें जिस तरीके से क्वेश्चन वही है कि कुछ गड़बड़ है, वैल्यूज तो वैसे भी नहीं मिलेंगी। या तो इधर देखो, अगर लेंस है तो कॉनकेव लेंस की जगह कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, ये हो सकता है। या फिर कोई कॉनकेव मिरर लेके चले, तभी तो हमें आंसर जो है हमारा मैच ही नहीं हो रहा कहीं भी। यस सर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने बोला था कि इसको छोड़ दो, व्हाई टू वेस्ट टाइम, इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी करेक्ट, और ऊपर से क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। चलो क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट एज हेड मिरर। बच्चे ये सिलेबस में नहीं है, एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज, फिर भी आप इसको याद रख सकते हो, इट इज कॉनकेव मिरर, इट इज कॉनकेव मिरर। Then question number 48, a metal rod M was dipped in a colored solution Y. After some time it was observed that metal rod starts dissolving in the solution. तो इसका ये मतलब है बच्चे, metal M more reactive in comparison to salt metal, उससे ज्यादा reactive होना चाहिए। Okay, who are ENT specialists? I nose throat doctors, आई नोज थ्रोट डॉक्टर्स जो होते हैं उनको ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं। ऑलराइट, तो बच्चे इसमें मेटल एम ज्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा, जिंक इन फेरस सल्फेट। ओके, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। बच्चे इसका सही आंसर है ए, मेटल एम में जिंक, जिंक प्लस फेरस सल्फेट, ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो हम करेक्ट ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चे, क्लियर, देखिए एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 49, केस स्टडी क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज अबाउट पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल के बारे में। ओके, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी किया था, एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। P is an aqueous solution of acid and Q is an aqueous solution of base. When these two are diluted separately, अगर आप बच्चे एसिड को डाइल्यूट करते हो तो क्या होगा, उसका pH बढ़ेगा, pH of P will increase and that of Q will decrease. All right, so 49A. Okay, question number 50. Which of the following acids is present in bee sting? Formic acid, also known as methanoic acid, 50A. Absolutely right. Question number 51. Sting of ant can be cured by rubbing the affected area with soap because बच्चे सोप के अंदर सोडियम के केमिकल्स होते हैं, तो इट कंटेन्स NaOH which neutralizes the effect of formic acid, 51C. All right, चलो आगे। Question number 52. The pH of soil X is 7.5 while that of soil Y is 4.5. Which of the two soils should be treated with powdered chalk to adjust its pH? बच्चे किसका pH वो करना चाहिए हमें एडजस्ट, किसको पाउडर्ड चॉक से करेंगे, जो एसिडिक है। बच्चे इसका ऑप्शन आएगा बी, जो सॉइल एसिडिक है उसको आप बेसिक सब्सटेंस के साथ क्या करोगे, ट्रीट करोगे। सॉइल वाई इज एसिडिक, बिल्कुल सही। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, केस स्टडी है, किडनीज है। ऑलराइट, तो बच्चे बी क्या है, बी इज रेनल वेन, ए इज किडनी, एफ इज यूरेटर, ये भी यूरेटर ही है, डी इज यूरिनरी ब्लैडर एंड ई इज यूरेथ्रा।
आइडेंटिफाई द पार्ट सी। बच्चे पार्ट सी क्या है? पार्ट सी इज यूरेटर, तो बहुत इजी है, पार्ट सी इज यूरेटर। एफ एंड सी मुझे सेम ही लग रहा है, यहां दिया हुआ है, तो यूरेटर। ओके, विच ऑफ दीज इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पार्ट ए? बच्चे किडनी, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्वेश्चन 55, हाउ ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स? बच्चे ब्लड को आर्टिफिशियल मेथड से कैसे प्यूरिफाई करते हैं? डायलिसिस। इन केस ऑफ रेनल फेलियर, डायलिसिस इज यूज्ड। Excretory materials are temporarily stored in urinary bladder in the form of urine. चलो डन। ओके, लास्ट केस स्टडी लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, u is -10, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ वुड बी पॉजिटिव 20 cm, find v. So 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. बच्चे वैल्यूज पुट करिए, 1 by 20 माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा यहाँ आके, तो माइनस u क्या है? u की वैल्यू कितनी है? 1 by 10 and 1 by v would be here. So LCM is 20, 10, 20. Right, 1, 2, 1 minus 2 minus 1, v is equal to minus 20. तो आंसर इज -20 सेंटीमीटर्स। -20, इसका आंसर क्या है? -20, डी ऑप्शन। अबाउ केस द साइज ऑफ इमेजेस। वजह साइज ऑफ इमेज फाइंड करिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v by u। v की वैल्यू है -20, u की वैल्यू है -10, 2, so that means 8 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट is placed 50 centimeter from concave lens and produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens. फोकल लेंथ कितना है? बच्चे कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है और ये वर्चुअल इमेज कहां फॉर्म कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना होगा? बच्चे फोकल लेंथ नेगेटिव में आना है, फोकल लेंथ नेगेटिव में आना है, ये तो पक्का है। ऑलराइट, तो -10 भी हो सकता है, -12.5 भी हो सकता है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। अगर वर्चुअल इमेज है, ओके, कॉनकेव लेंस में तो वर्चुअल इमेज ही बनेगी। वेयर शुड इट बी प्लेस्ड? एक मिनट, ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। बच्चे मुझे तो लग रहा है इसका आंसर -10 ही होना चाहिए। कितना आएगा? बी ऑप्शन, -12.5। -12.5, ओके। सॉल्व करके देख लीजिएगा, लेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें। लास्ट इज पावर ऑफ द लेंस। पावर इज 1 by f इन मीटर्स। तो बच्चे पावर किसकी? कॉनकेव लेंस की। फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 100 से डिवाइड करो, 100 by 5 माइनस, तो इट विल बी -20 डी। ऑप्शन इज डी, -20 डी आएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ इन मीटर्स। और बच्चे जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में रहती है। तो फोकल लेंथ -5 है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको 1 by f करके आंसर निकाल लो। आंसर विल बी -20। ऑलराइट, तो दिस इज इट बच्चे। यहाँ ये वाला क्वेश्चन पेपर भी डन है, कंप्लीटेड।
सो आई थिंक अभी तक हमने बच्चे 4-5 सैंपल पेपर तो डिस्कस कर ही लिए हैं. आई थिंक 4 to 5 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्लास बचे अनीशा ने मेरे साथ उसका जो पेपर था वो शेयर किया था. तो नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे वो वाला पेपर पिक करेंगे. अगर आप में से किसी और बच्चे का पेपर हो गया है, आई थिंक एक RBDAV का पेपर हुआ था मेरे पास, शायद मुदित ने भेजा था, तो वो भी मैं एक डिस्कस कर लूंगा आपके साथ. ऑलराइट एंड ऑलराइट, चलो ओके बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर. ऑलराइट, see you all in the next class.